Hello friends, I am Jaya and welcoming you all to my YouTube channel which is Aradhya's YouTube family channel, and according to GIC syllabus we have read Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Milton, John Dryden, Alexander Pope, William Wordsworth, P.B. Shelley, John Keats, Alfred Lord Tennyson, Matthew Arnold, Charles Dickens, Thomas Hardy, William Butler Yeats, T.S. Eliot, George Bernard Shaw, George Orwell, Raja Rao, Mulk Raja Anand, Nizam Musical, Robert Frost, Ernest Hemingway, Harold Pinter, Rabindranath Tagore, Girish Karnad, V.S. Naipaul, and Short History of English Literature. Now, today we will read about Renaissance. So let's get started. The English Renaissance was a cultural and artistic movement in England dating from the late 15th to the early 17th century. It is associated with the Pan-European Renaissance that is usually regarded as beginning in Italy in the late 14th century. Here are some questions which are asked generally in paper, that are what are the characteristics of Renaissance literature? What is the impact of Renaissance on English literature? Why was the English Renaissance important? How did literature change during the Renaissance? As in most of the rest of Northern Europe, England saw little of these developments until more than a century later. Renaissance style and ideas, however, were slow to penetrate England and the Elizabethan era. In the second half of the 16th century, usually regarded as the height of the English Renaissance, however, many scholars see its beginnings in the early 1500s during the reign of Henry VIII. The English Renaissance is different from the Italian Renaissance in several ways. The dominant art forms of the English Renaissance were literature and music. Visual arts in the English Renaissance were much less significant than in the Italian Renaissance. The English period began far later than the Italian, which was moving into Mannerism and the Baroque by the 1550s or earlier. Major English Renaissance authors. Major literary figures in the English Renaissance include Francis Bacon, Francis Beaumont, Thomas Campion, George Chapman, Francis Herbert, Thomas Dacre, John Donne, John Fletcher, John Ford, John Milton, Ben Jonson, Thomas Kidd, Christopher Marlowe, Philip Messenger, Thomas Middleton, Thomas Moore, Thomas Nash, William Raleigh, William Shakespeare, James Shirley, Philip Sidney, Edmund Spenser, William Tyndale, John Webster, and Thomas White. अंग्रेजी पुनर्जागरण मीन्स इंग्लिश रेनेसा. अंग्रेजी पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक और कलात्मक 17वीं सदी के लिए 15वीं सदी से इंग्लैंड डेटिंग में आंदोलन था. यह पैन यूरोपियन पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है, जिसे आमतौर पर 14वीं शताब्दी के अंत में इटली में शुरू माना जाता है. अधिकांश उत्तरी यूरोप की तरह इंग्लैंड ने भी इन घटनाओं में से एक सदी से अधिक बाद तक कम देखा. अंग्रेजी पुनर्जागरण की शुरुआत अक्सर एक सुविधा के रूप में की जाती है. 1485 होने के लिए, जब बॉसवर्थ फील्ड की लड़ाई ने रॉजर्स के युद्धों को समाप्त कर दिया और ट्यूडर राजवंश का उद्घाटन किया. पुनर्जागरण शैली और विचार हालांकि इंग्लैंड में प्रवेश करने के लिए धीमा थे और 16वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में एलिजाबेथ एज को आमतौर पर अंग्रेजी पुनर्जागरण की ऊंचाई माना जाता है. अंग्रेजी पुनर्जागरण इंग्लिश रेनेसां कई मायनों में इटालियन रेनेसां से अलग है. इंग्लिश नवजागरण के प्रमुख कला, साहित्य और संगीत थे. इंग्लिश पुनर्जागरण में दृश्य कलाएं इटालियन रेनेसां की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण थी. अंग्रेजी की अवधि इटालियन की तुलना में बहुत बाद में शुरू हुई, जिसे आमतौर पर 14वीं सेंचुरी के अंत में शुरू होने के लिए माना जाता है और 1550 या उससे पहले तक मैनरिज्म और बैरक में चल रहा था. इसके विपरीत अंग्रेजी पुनर्जागरण को केवल 1520 के दशक में शुरू करने के लिए कहा जा सकता है और संभवतः 1620 तक यह जारी रहा. इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर की एक मजबूत परंपरा थी, जो धीरे धीरे बढ़ गई क्योंकि 16वीं सेंचुरी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस का इंग्लिश उपयोग आम हो गया.
एलिज़ाबेथेन लिटरेचर के समय तक नाटक और कविता दोनों में एक जोरदार साहित्यिक संस्कृति में एडमंड स्पेंसर जैसे कवि शामिल थे, जिनकी कविता महाकाव्य द फेयरी क्वीन का इंग्लिश लिटरेचर पर एक मजबूत प्रभाव था। लेकिन अंततः विलियम शेक्सपियर, थॉमस वॉयट और अन्य के गीतों की देखरेख की गई। आमतौर पे इन नाटककारों और कवियों की रचनाएं प्रकाशित होने से पहले कुछ समय के लिए पांडुलिपि के रूप में परिचालित होती थी और अंग्रेजी पुनर्जागरण इंग्लिश रेनेसां थिएटर के सभी नाटकों में इस अवधि की उत्कृष्ट विरासत थी। अंग्रेजी रंगमंच का दृश्य, जिसने निजी प्रदर्शनी में अदालत और कुलीनता के लिए प्रदर्शन किया, और सिनेमा घरों में बहुत व्यापक जनता, यूरोप में सबसे अधिक भीड़ थी, जिसमें अन्य नाटककारों के साथ साथ क्रिस्टोफर मार्के, शेक्सपियर की विशालकाय हस्तियां भी थीं, और बेन जॉनसन, एलिज़ाबेथ खुद रॉजर एस्चिम द्वारा प्रशिक्षित रेनेसां मानवतावाद का एक उत्पाद थी और कभी-कभार कविताएं लिखती थी, जैसे ऑन मैनर्स प्रस्थान। उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में दर्शन शास्त्रियों और बुद्धिजीवियों में थॉमस मोरे और फ्रांसिस बेकन शामिल थे। सभी 16वीं सेंचुरी के ट्यूडर सम्राट उच्च शिक्षित थे, जैसा कि कुलीनता का बहुत था, और इटालियन साहित्य का काफ़ी पालन किया गया था, जो शेक्सपियर के कई नाटकों के लिए स्रोत प्रदान करता था। अंग्रेजी वैज्ञानिक विधि के अग्रदूत बेकनियन विधि के साथ आधुनिक विज्ञान की ओर अग्रसर हुए। सामान्य प्रार्थना की पुस्तक की भाषा पहली बार 1549 में प्रकाशित हुई, और इस अवधि के अंत में बाइबल 1611 के प्राधिकृत संस्करण अमेरिका के लिए किंग जेम्स संस्करण ने अंग्रेजी चेतना पर स्थायी प्रभाव डाला। इंग्लिश नवजागरण रेनेसां के विचारों की आलोचना। इस अवधि को रेनेसां कहने की धारणा एक आधुनिक आविष्कार है, जिसे 19वीं सेंचुरी में इतिहासकार जैकब बर्कहर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। पुनर्जागरण का विचार कई सांस्कृतिक इतिहासकारों द्वारा आलोचना के तहत आया है, और कुछ ने तर्क दिया है कि अंग्रेजी पुनर्जागरण का इटालियन कलाकारों लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, डोनाटेलो के कलात्मक उपलब्धियों और उद्देश्यों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है। पुनर्जागरण दृश्य कला के निकट से पहचान की, जबकि साहित्यिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इंग्लैंड ने 14वीं सेंचुरी के अंतिम दशकों के दौरान शेक्सपियर के समय से 200 ईयर्स पहले साहित्य के उत्कर्ष का अनुभव किया था। अंग्रेजी के जेफरी चौसर के लैटिन के बजाय साहित्यिक रचना के एक माध्यम के रूप में लोकप्रिय बनाने के 50 ईयर्स के बाद ही दांते ने गंभीर कविता के लिए इटैली का उपयोग करना शुरू किया था। इटालियन लैंग्वेज का उपयोग करना शुरू किया था, और चौसर ने बोकेशियो और पेट्रार्क दोनों के कार्यों का मध्य अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसी समय विलियम लैंगडन, पियर्स प्लाउमैन और जॉन गोवर अंग्रेजी में लिख रहे थे। 15वीं सेंचुरी में ले मॉर्टे डी ऑथर के लेखक थॉमस मॉलरी एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। इस कारण से विद्वानों ने अंग्रेजी पुनर्जागरण काल को संदिग्ध कहा है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में मध्यकालीन और पुनर्जागरण साहित्य के प्रोफेसर C.S. लुइस ने प्रसिद्ध रूप से एक सहकर्मी से टिप्पणी की कि उन्होंने खोजा था कि कोई अंग्रेजी नवजागरण नहीं था, और अगर वहाँ एक था तो इसका कोई प्रभाव नहीं था। सकारात्मक या नकारात्मक अर्थों से बचने का प्रयास करता है। अन्य सांस्कृतिक इतिहासकारों ने माना है कि भले ही नाम पुनर्जागरण उपयुक्त नहीं है, ट्यूडर सम्राटों के तहत शेक्सपियर और उनके समकालीन में परिणत इंग्लैंड में एक कलात्मक फूल था। प्रमुख अंग्रेजी पुनर्जागरण के लेखक अंग्रेजी नवजागरण के प्रमुख साहित्यकारों में शामिल हैं फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डैकर, जॉन डन, जॉन फ्लेचर, जॉन फोर्ड एंड बेन जॉनसन, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, फिलिप मंसगर, थॉमस मिडलटन, थॉमस मोर, थॉमस नैश, विलियम रॉली, विलियम शेक्सपियर, जेम्स शर्ली, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, जॉन वेबस्टर, थॉमस वॉट, विलियम टिंडले। The Renaissance was a period in Europe, especially Italy, in the 14th, 15th and 16th centuries when there was a new interest in art, literature, science and learning. If something experiences a renaissance, it becomes popular or successful again after a time when people were not interested in it. Popular art is experiencing a renaissance.
समानार्थी शब्द क्या है रेनेसा के? रीबर्थ, रिवाइवल, रेस्टोरेशन, रिन्यूअल रेनेसा के समानार्थी शब्द हैं। फ्रॉम रेनेसा टू 21st सेंचुरी, फ्रॉम रेनेसा टू 17th सेंचुरी, इसमें आपके 8 टॉपिक्स हैं। द रेनेसा, रिफॉर्मेशन एंड इट्स इम्प्यूटेंस ऑन लिटरेचर, द मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस, the university wears Elizabethan poetry, the metaphysical poetry and the neoclassical movement in poetry. From 18th century and the romantic age, the growth of the novel, precursors of romanticism and French revolution, the growth of romantic literature. फ्रेंड्स, यहाँ रोमांटिसिज्म से कंसर्न ये नहीं है कि बॉय एंड गर्ल, यहाँ परमात्मा मतलब ईश्वर और नेचर प्रकृति के प्रति जो रोमांटिसिज्म है उसको पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस किया गया था। 19th सेंचुरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन एज, ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, पोइट्री, प्रोज, नॉवेल, ड्रामा। द 20th and 21st सेंचुरी, trends in 20th century, the transitional poets, William Butler Yeats, the Georgian poets, T.S. Eliot, the Oxford poets, Imagism, the stream of consciousness novel, symbolism, expressionism, surrealism, dadaism. Drama in the 20th century, the realistic drama or problem play, drama of ideas, a revival of the poetic drama in the 20th century, expressionist drama, theatre of the absurd, feminism movements and ideologies, postmodernist, post-colonial literature, epic theatre. So friends, here is going to wrap up of this all, and we will meet in next video. Till then, take care, stay blessed, be happy, and if you like this video, do like, share and subscribe the channel. Bye bye.